آج جو موضوع ہے وہ بڑا زبردست خوشی والا موضوع ہے. وہ کیا ہے کہ مکہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے جس میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہوا ہے، جبکہ اس میں مزید مصر، کویت اور قطر بھی ملنے والے ہیں. اور جب یہ سارے ممالک مل جائیں گے تو ایک مسلم نیٹو وجود میں آئے گا. اس کے مسلمانوں کو کیا کچھ فوائد ہوں گے، اس پر ہم تجزیہ لیں گے مفتی عبد المنعم فائز صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے خوشی سے سرشار ہیں. جی بالکل. اور واقعہ ہی ایسا ہے کہ پاکستان، ترکی، سعودی عرب، یہ خواب تھا لوگوں کا کہ ایک ایسا اتحاد وجود میں ہے تاکہ عالم اسلام بھی کچھ جی سکے سر اٹھا کر، اور مسلم ملکوں پر جو اتنی یلغار ہو رہی ہے اس کا کوئی تو توڑ کرنے والا ہو. تو انشاءاللہ پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ مل کر اس کا توڑ کریں گے. اور پورے خطے میں، بلکہ اب آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کی یہ جو انتہائی اہم ترین جگہیں ہیں جہاں سے پوری دنیا کی تجارت منتقل ہوتی ہے، ان 3 جگہوں پر یہ 3 ملک موجود ہے. پاکستان موجود ہے، سعودی عربیہ موجود ہے، اوپر ترکی موجود ہے. کون سی 3 جگہیں؟ ان میں سب سے پہلی جو جگہ ہے وہ ہے خلیج فارس، یعنی یہی جو جہاں سے دنیا کا پیٹرول نکل رہا ہے. اور اس وقت پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ دنیا کی ضرورت کا 60% پیٹرول اللہ نے یہاں رکھا ہے، لیکن پھر شیل پیٹرول وغیرہ دوسری قسم کے پیٹرول نکلے، اور اس کے بعد سے اب جو دنیا کی ضرورت کا 20% سے زیادہ پیٹرول ہے وہ یہاں سے نکل رہا ہے، خلیج فارس سے، جو لٹرلی اس وقت میں بھی حقیقتاً پوری دنیا کی 20% معیشت اسی کے بل بوتے پہ چل رہی ہے. دوسرے نمبر پہ جو خلیج فارس کے بعد اگلا خطہ اس بہت اہم ہے وہ ہے بحر احمر کا. تو بحر احمر جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یورپ کی، امریکہ کی ساری مالی جو آمد و رفت ہے یہیں سے ہوتی ہے. تو یورپ کے لیے ایشیا سے جتنا بھی مال جا رہا ہے، یورپ کا ایشیا میں جتنا بھی مال آ رہا ہے، کیونکہ دنیا میں جو 60% آبادی ہے، یعنی منڈی ہے نا، وہ ایشیا میں ہے. دنیا کی 60% آبادی اللہ نے ایشیا میں رکھی ہے، لوگ ایشیا میں بستے ہیں. اور آدھی سے زیادہ آبادی صرف ایک بر اعظم میں اللہ تعالیٰ نے بسائی ہے، جن میں چائنا کو آپ دیکھیں 1.5 ارب وہاں پہ ہے، انڈیا میں 1.5 ارب ہے، پاکستان کو دیکھ لیں آپ 25 کروڑ ہے، انڈونیشیا کو آپ دیکھ لیں ان کی 35 کروڑ کے قریب. تو اس طرح یعنی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ بر اعظم ایشیا میں ہے. تو بحر احمر اس کا رستہ ہے. بحر احمر سے جب آپ نکلیں گے بحر احمر سے جب گزرتے ہیں تو سعودی عربیہ سال لگتا ہے. اس سے آگے آپ جب چلے جائیں گے بحر روم میں داخل ہوں گے، میڈیٹرینین سی جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہاں پہ اس کے دہانے پہ بیٹھا ہوا ہے ترکی. صحیح، اس کو بحر اسود بھی لگتا ہے، بلیک سی بھی ہے، آبنائے باسفورس بھی لگتی ہے. صحیح ہے، اور ایجین سی، اور پھر یہ جو پورا بحر روم ہے یہ اس کی نگرانی کرتا ہے. اور ترکی کے پاس جو ایک بڑی صلاحیت ہے وہ سمندری سرویلنس کی ہے، کہ سمندر کی نگرانی کا جو جدید ترین اکوپمنٹ ہے وہ اس وقت ترکی اس کو لیڈ کرتا ہے. تو اس وجہ سے ترکی، سعودی عربیہ، پاکستان یہ ایک کئی اعتبار سے بڑا اہم ایک نیا اتحاد ہے. معاشی اعتبار سے بھی اہم ہے، اقتصادی لحاظ سے بھی اہم ہے، عسکری لحاظ سے بھی اہم ہے، جغرافیائی لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے. یہ 3 ملک مل کر پوری دنیا کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، پوری دنیا کی معیشت روک سکتے ہیں، پوری دنیا میں کسی بھی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں. اچھا، جبکہ مصر، قطر اور کویت، ان کے پاس کیا خاص چیزیں؟ ہاں، مصر، قطر اور کویت کی جو ہم بات کی تو ان میں سے جو مصر ہے وہ اکنامیکلی بھی بہتر اسٹیبل ہے اور عسکری طور پہ مضبوط ہے، اور انقلابات میں نسبتاً محفوظ رہا. اس پورے خطے میں جو انقلاب آئے تو ان میں محفوظ رہا. لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ مصر نے اپنے جو دفاعی انحصار ہے وہ اب تک 100% کیا ہوا ہے امریکہ کے اوپر. اچھا، قطر نے بھی اسی طرح کیا ہے. لیکن یہ جو ملک ہیں یہ کیوں امریکہ کی یعنی قبضے سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ جو ہے اس کے جو بائسنس ہے، اس کا جو تعصب ہے، خصوصاً جو اسلامک ممالک کے حوالے سے اس کا جو تعصب ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے. اور دوسرا یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ ایران کے حملوں کے بعد ایران کے میزائلوں کا توڑ امریکہ کے پاس نہیں تھا. تو اگر یہی کچھ کروانا ہے، یعنی یہ عرب ملک یہ سوچتے ہیں اگر اسی طرح ہی کرنا ہے کہ امریکہ صاحب جو ہے وہ دھمکیاں شمکیاں دیتے رہیں گے، ہم ایران پہ بمباری کریں گے لیکن ایران کے میزائل ہم پہ گرتے رہیں گے، تو بھائی اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یا تو ہمیں ان ممالک کو سیکورٹی فراہم کرنے میں، تحفظ فراہم کرنے میں عملاً ناکام رہ گیا. تو اس وجہ سے قطر جیسا انتہائی معیشت کے اعتبار سے مضبوط ملک، اربوں ڈالر، جن کو $1 ٹریلین کے معاہدے انہوں نے سعودیہ کے ساتھ کیے تھے صرف اس وجہ سے کہ بھائی آپ ہمیں سیکورٹی دیں گے، اور سیکورٹی کی صورتحال آپ سامنے دیکھ لیں کہ کیا ہوگی. تو اس وجہ سے پورے عالم اسلام میں اضطراب تھا، اور اس میں ترکی نے ماشاءاللہ پہل کی ہے. ترکی جو ہے $1 ٹریلین کی جو ہے معیشت ہے، اس سے بڑا GDP ہے اس کا. اسی طرح جو ہے سعودی عربیہ، اس کا $1 ٹریلین کا، پاکستان کا $0.5 ٹریلین کا. تو تقریباً یہ $3 ٹریلین کے قریب یہ ان 3 ملکوں کی معیشت بنتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ اگر سب کی آبادی ملا لیں تو تقریباً 37 کروڑ کے قریب آبادی ہے تینوں حصوں کی. جو سعودی عربیہ ہے اس کی آبادی تقریباً کوئی 3.5 کروڑ ہے، پاکستان کی 25 کروڑ ہے، اور جو ترکیہ ہے اس کی تقریباً 8 کروڑ کے قریب آبادی ہے. تو یہ اتنی بڑی آبادی والا جو پورا خطہ ہے وہ ایک گویا متحد ہو رہا ہے، اور ان کا ایک آپس میں الائنس بن گیا ہے کہ ایک کے اوپر حملہ دوسرے پر حملہ سمجھا جائے گا، اور مشترکہ کازز میں یہ سب ملیں گے. اس کی وجہ سے 2 جو براہ راست یعنی جن کو اٹیک کیا نا، مطلب جن کہتے ہیں کہ اس اتحاد سے جن کو 2 براہ راست جن ملکوں کو میسج گیا ہے، ان میں پہلا ملک اسرائیل ہے.
इसराइल ने इस पूरे खित्ते को डिस्टर्ब रखा है और तोसी पसंदाना अज़ाइम भी हैं और उसके मसाइल भी हैं, और उसी से बचने के लिए आज तक ये पूरा खित्ता सऊदी वो अमेरिका से एग्रीमेंट कर रहा था। आपने देखा ना कि अमेरिका से इत्तेहाद कर रहे थे कि भाई अमेरिका बहादुर हमें इन सारी मसाइल से बचा, और अरब इसराइल जंग में चुके, इसराइल जीत गया था जी, इसीलिए वो सब जो अभी तक खर्चा कर रहे थे वो। लेकिन दूसरा जो बड़ा खतरा इन अरब ममालिक को इस खित्ते में दरपेश है वो ईरान का है। तो ईरान जो है उसको बरह रास्त एक मैसेज गया है। इस वजह से आप देखेंगे कि पाकिस्तान में भी जो लोग ईरान नवाज लॉबी है वो इसके ऊपर तिल मिला रही है, इस पे गुफ्तगू कर रही है, और भी लोग हैं। अच्छा, ईरान ने कभी सऊदी अरब को दिल से तस्लीम नहीं किया, और आलम इस्लाम के जहां जहां मसाइल थे हमेशा खंजर में, इनके कमर में खंजर ही होता था, और उनको सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया से ही इशू है, तो इसलिए सऊदी अरेबिया का भी अपना मसला था। और अब ये है, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश से ये करीब आ रहे हैं। हाँ, करीब आ रहे हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने देखिए, दूसरे नंबर पर यह है कि अब जो मुल्क है जाहिर है कि उनको अपनी बका का एक मसला दरपेश है। ईरान तो पेट्रोल बेचकर अपना सारा जो पैसा है वो इसी तौसी पसंदी के ऊपर लगा रहा है। बहरीन में अपनी खलफशार खड़ा किया हुआ उसने, अब आप देख रहे हैं दूसरे मुल्क यमन उसने कर लिया, उसमें अपना ग्रुप खड़ा कर दिया है उसने, इराक उसके कब्जे में आ गया है। लेकिन शाम में उसका नहीं, इस इतिहाद से जिस तरह इसराइल अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम से पीछे हटेगा, इसी तरह ईरान भी हटेगा इंशाल्लाह। और उसी तरह ये अखंड भारत जो था, हाँ, वो भी ये सारे देखिए सबके मसाइल अपने एतबार से हैं। तो पाकिस्तान को जो इशू, अब तुर्की को जो है वो इसराइल के साथ बराह रास्त इशू है। सऊदी अरेबिया को इसराइल से भी है, लेकिन इसराइल से इतना बड़ा नहीं है जितना ईरान से बराह रास्त डायरेक्ट और सबसे पहले मसला दरपेश है पाकिस्तान का इंडिया के साथ, और 80 साल से चल रहा है। अब देखिए, ये तीन मुल्क जब मिले हैं तो इनकी टेक्नोलॉजी मिली है। टेक्नोलॉजी के अंदर इस वक्त तुर्की जो है वो यूरोप को कम्पीट कर रहा है। तुर्की जो है वो इस वक्त नेटो में दूसरा बड़ा दिफाई एतबार से मजबूत मुल्क है। दिफाई एतबार से उसके पास जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है दुनिया में उसका कोई जवाब नहीं है। उसके पास जो बहरी सर्विलेंस की टेक्नोलॉजी मौजूद है दुनिया में उसकी कोई जोड़ नहीं। और तीसरे नंबर पर सर्विसेज सेक्टर में वो बहुत आगे जा चुका है। पाकिस्तान में आपको पता होगा जो अभी हालिया जंग हुई थी तो उसमें खला में और फिजा और खला तक ये जंग गई है। तो उसमें जब अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें इन्वॉल्व हो गई है, साइबर वार उसके अंदर आ गई है, और साइबर सिक्योरिटी के जो जदीद तरीन जो तहकीकात हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुई। इस सारी टेक्नोलॉजी में तुर्की को एज हासिल है। तो तुर्की अगर जो खला से सर्व निगरानी करने के जो निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान ने बनाए हैं उसमें अगर तुर्की पाकिस्तान के साथ किसी जंग में शामिल होगा, वहाँ से सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन तुर्की जब फराहम करेगा तो पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों पर कितनी बड़ी बालादस्ती होगी। ये जंग तो हमने अपने बलबूते पर जो लड़ी सो लड़ी, लेकिन हमें अब बरह रास्त बाहर से ये मदद मिल रही होगी अगर खुदा न खास्ता कल को पाकिस्तान और इंडिया की कोई जंग या पाकिस्तान को खित्ते में किसी जंग में इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो ये तीन मुल्कों के जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होगी, इनकी जो मालूमात हैं, इनके इंटेलिजेंस मालूमात हैं, इनके जंग के लिए मालूमात हैं, इनके जो खुसूसन जो इस वक्त में 5th जनरेशन के जो तैयारी बना रहा है, कान का पिछले दिनों में जिक्र भी होता रहा कि उसकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी और जो 5th जनरेशन के लिए उन्होंने अपने तैयारी डेवलप करना शुरू कर रखे हैं तुर्की ने, तो दुनिया में उसकी मांग बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें जब एक प्लेटफॉर्म पर आएंगी, पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, फौज है, मुनज़्ज़म है, मजबूत है, डिसिप्लिन्ड है, उनकी तैयारी है और दुनिया उसको मानती है, उनकी सलाहियतों को मानती है। दुनिया में जब कभी बड़े कंपटीशंस होते हैं फौजी महारतों के तो पाकिस्तानी उसमें पहली दूसरी पोजीशन ले रहे होते हैं। तो असलहे में जो तुर्की का बहुत बड़ा नाम है, सही है, तो तुर्की का असला होगा, पाकिस्तान का असला होगा, सऊदी अरेबिया के लोग साथ मिलेंगे, उनकी मईशत होगी, फिर इन तीनों मुल्कों की जो इंटेलिजेंस है वो आपस में शेयरिंग कर रहे होंगे। इसी तरह जो इनके खला के अंदर मालूमात के ज़राए हैं, सैटेलाइट हैं या 5th जनरेशन के जो तैयारे हैं, उनके ज़रिए से जो मालूमात होंगी तो ये दुनिया में किसी भी बड़ी से बड़ी फौज से लड़ सकते हैं। फाइज साहब, ये जो से फरीकी मुआहिदा हुआ ना, इसका एक तारीखी पस मंजर भी है। देखिए, पाकिस्तान की बिना रियासत मदीना पर है और पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ शुरू से ही बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं सारे माशरे। अच्छा, इसी तरह तुर्की और सऊदी अरब को देख लो, तो लॉरेंस ऑफ अरबिया ने जिस तरह साजिशें करके उनको तोड़ा सा, 120 साल के बाद दोबारा मिले, दोबारा मुत्तहिद हो। सही बात है। तो देखें, ये तारीखी एतबार से पाकिस्तान के भी इन दोनों इलाकों के साथ पाकिस्तान और तुर्की के तुर्की को आप जंग खिलाफत उस्मानिया, जंग अजीम अव्वल, उससे पहले जंग अजीम अव्वल से पहले हजरत शेख उल हिंद ने जब तहरीक चलाई तो उसमें खिलाफत उस्मानी खलीफा से इजाजत ली उन्होंने। उस्मानी खलीफा की मदद के लिए पूरे हिंदुस्तान में कितने बड़े पैमाने पर चंदे हुए हैं और उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। यहाँ घर घर से लोगों ने सोना जमा कर करके खिलाफत उस्मानिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भेजा और इतनी बड़ी जो तहरीक खिलाफत थी। तुर्की में जाना हुआ है, वहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनको वो एहसान याद है कि भाई पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में साथ दिया था। तो तहरीक खिलाफत बाकायदा इतनी बड़ी तहरीक चली है यहाँ पे ताकि हम खिलाफत उस्मानिया को बचा सकें। अच्छा फाइज साहब, ये एक बात बताएं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये दिफाई मुआहिदे हो रहे हैं, ये हो रहा है, इससे पाकिस्तान की जो
तकरीबन 8 करोड़ आबादी खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारे, बिजली के मसले हैं, गैस के मसले हैं, गुर्बत है, महंगाई है, मैशत, इससे भी फायदा होगा, आवाम को कोई फायदा होगा नहीं? देखिए इसमें आपको और हमें क्या फायदा होगा? देखिए ये सबसे अहम सवाल है कि इस वक्त जो हमारे माशी तौर पे बहरान है क्या वो संभलेगा? क्योंकि इस वक्त हमने अभी भी पाकिस्तान के पास 17-18 अरब के जो रिजर्व्स है, फॉरेन रिजर्व जो पाकिस्तान के पास है, वो 17 अरब 18 अरब इसी में घूमते रहते हैं, और उनमें से भी 8 अरब जो है वो सिर्फ सऊदी अरेबिया से लिया हुआ है, सही है। कुछ 1-2 अरब जो है वो चाइना से लेकर रखे हुए होते हैं, और 5 अरब सालाना हमें जो है वो IMF मदद कर देता है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा जो फायदा पाकिस्तान को होगा इंशाल्लाह वो ये है कि पाकिस्तान के इन दोनों मुल्कों के साथ एग्रीमेंट के नतीजे में सबसे पहले पाकिस्तान का जो असला है वो इन मार्केटों में बिकेगा। पाकिस्तान के जो असले साज फैक्ट्रियां हैं वो रेवेन्यू पाकिस्तान को मिलेगा। एक तैयारा जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बनता है, तो एक तैयारा भी अगर बिकता है तो जाहिर है उससे मिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलेगा। सबसे पहले तो ये फायदा होगा कि पाकिस्तान की जो दिफाई सनत है वो बहुत तरक्की करेगी, और पाकिस्तान को जो डॉलर का एहतियाज है ना वो खत्म होगा और कम हो जाएगा कम अज कम, और हम जो IMF के पास जा रहे हैं इस तरह मजबूर होकर उसकी तरफ में भी कमी आएगी। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि ये जो मुल्क हैं इनका बरह रास्त इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, तो इनके पाकिस्तान के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स होंगे, इनकी कंपनियां पाकिस्तान में आएंगी। जैसे अब आप देखें सऊदी अरेबिया आया पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों ने उनको ऑफर किया कि भाई आप जो ज़राअत में इन्वेस्ट करें, आप मादनियात में इन्वेस्ट करें, उनके डेलीगेट्स आ रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने ऑफर किया कि आप सखर हैदराबाद मोटरवे में एक सेक्शन में इन्वेस्ट कर लें। तो इस तरह उनकी जो कंपनियां हैं उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बरह रास्त शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो तुर्की है, तुर्की के पास बहुत ज़बरदस्त बिजनेसेस हैं, कॉर्पोरेट में उसका नाम है, तिजारत में उसकी पहचान है, और दुनिया में ब्लॉकों की बुनियाद पे अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने जो टैक्सेस लगाना शुरू किए हुए, तो उन टैक्सेस के बाद अल्टरनेट मार्केट क्या है, यानी तुर्की से अगर अमेरिकी नहीं खरीदेंगे तो तुर्की को एक ऐसी बड़ी मार्केट भी तो चाहिए ना, 25 करोड़ जैसे पाकिस्तानी है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो तुर्की पाकिस्तान में बेच सकता है, यहाँ पाकिस्तानी इंपोर्ट कर सकते हैं वहां से। तो इस तरह से यानी विन विन सिचुएशन होगी सऊदी अरेबिया के लिए भी, तुर्की के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, कि इनके लिए नई मार्केट्स खुलेंगी, पाकिस्तानियों के लिए भी तुर्की की मार्केट खुलेगी, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और जो तुर्की है वो एक सर्विसेज बेस्ड मुल्क है, तो अपनी सर्विसेज पाकिस्तान को दे सकता है, अपनी जो नई टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान में शिफ्ट कर सकता है, जो नई उसने इनोवेशंस की हैं, नई इजादात करके चीजें बनाई हैं वो पाकिस्तान में भेज सकेगा, और पाकिस्तान वहां पे। अच्छा फाजिल साहब, एक बात कि आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग डंकी लगा के यूरोप और इन ममालिक में जाते थे। गुज़श्ता 2-3 साल से पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका, पिछले साल 7.5 लाख लोग गए, उससे पिछले 8 लाख लोग गए, पढ़ा लिखा हुनरमंद तबका जो बाहर जा रहा था वो भी रुकेगा कि यहीं पर घर के अंदर उनको इन्वेस्ट मिलेगी, नौकरी मिलेगी? जब ऐसी कंपनियां पाकिस्तान में आएंगी, तुर्की कंपनियां, तो जाहिर है कि पाकिस्तानी नौजवानों के लिए जरिया रोज़गार खुल जाएगा। बहुत सारे लोग जो बाहर जा रहे हैं वो रुक जाएंगे, और बहुत सारा जो हमारे तालीम याफ्ता लोग हैं, जो ब्रेन हमारा जा रहा है पाकिस्तान से, तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी बेहतरी आएगी। और इसी तरह से मुल्क जो है ना वो एग्रीमेंट्स के जरिए से आगे बढ़ते हैं। एक नेटो बनाया था, उसके जरिए से अमेरिका ने, यूरोप ने क्या दुनिया भर में क्या कुछ नहीं कर दिया, तो इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम जी, बस इसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये किसी ऐसे झगड़े में ना पड़ जाए जिससे जो इनके मकासद है उनके रस्तों में रुकावट हो। तो इंशाल्लाह ये जो सफ़र है शुरू हुआ है, और आगे जैसे आप कह रहे हैं कि मिस्र भी इसके लिए कोशिश कर रहा है, कतर इसके लिए कोशिश कर रहा है, दूसरे ममालिक कुवैत है इस कोशिश में है कि इसके इत्तेहाद का हिस्सा बने। इसमें आके हमारे अवाम के करने का क्या काम है, वो क्या करें? देखिए सबसे पहले तो खुश होते हैं। सबसे पहला काम तो ये पाकिस्तान के लोगों के लिए सबसे बड़ा काम ये है कि ये सब कुछ तो वहां पे हो रहा है, हम उनको सपोर्ट करने का एक तरीका ये कि अपने मुल्क में खलफशार ना बर्पा करें, मनफी चीजों को लेकर पड़े रहना, मनफी चीजों को कुरेदते रहना, मनफी चीजों पे कमेंट करते रहना, जिंदगी खराब करते रहना सोशल मीडिया पे इधर उधर फजूल चीजों में। उसकी बजाय दुनिया स्किल्स की तरफ आ गई है, महारत पे आ गई है, अब उनको सर्विसेज के ऊपर आ गई है दुनिया। इन चीजों घरों में बैठकर पाकिस्तानी 2-3 अरब कमा रहे हैं ना, 2-3 अरब डॉलर आज से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। 1 अरब डॉलर एक बहुत बड़ी रकम है जो पाकिस्तानी कमा रहे हैं, तो पाकिस्तानी 2-3 अरब डॉलर इस वक्त बैठ के घर से बैठे कमा रहे हैं। तो हमारी नौजवान नस्ल को इन चीजों पर लगना चाहिए, इन पे मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को बेहतर करना चाहिए। तो इस लोग बेहतर होंगे तो मुल्क बेहतर होगा, लोग निकम्मे होंगे, बेरोजगार होंगे, फजूल कामों में लगे रहेंगे, या उल्टी सीधी रोजाना जो खबरें आती हैं उन कामों में लगेंगे, तो जाहिर है उससे मुल्क कमजोर होगा, मुल्क भी वैसे ही होगा जैसे लोग होते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपके लिए खुशी की बात यह है कि मक्का दिफाई मुआहिदा जो है इसके समरात आप तक पहुंचेंगे, आपके नस्लों तक पहुंचेंगे, आपके खानदानों तक पहुंचेंगे, आपके नस्लों की जिंदगियां बदल देंगी। करने का काम एक है, आपने इत्तिफाक व इत्तिहाद का मुजाहिरा करना है, पाक वतन के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, मुस्बत सोच के साथ मुल्क व कौम की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है।